ان پہ ہمارے ساتھ ہوں گے حشام الہی ظہیر بھائی۔ ظہیر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کی طرف آتا ہوں، یہ فرما دیجئے کہ معجزہ ہوتا کیا ہے، بس یہ فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، معجزہ ایسی خرق العادت شے کو کہتے ہیں کہ جس کی توضیح اور تشریح انسانی عقل کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ مطلب کوئی بھی شے میری عقل سے بالا ہے تو میرے لیے معجزہ ہے کیا؟ ہاں بالکل، یعنی جس کی تشریح انسانی عقل نہ کر سکے۔ مثال دے رہا ہوں کہ مریم کے گھر بن باپ کے بچے کا پیدا ہونا، اب یہ عقل نہیں مان سکتی کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ہوا تو یہ معجزہ ہے۔ بغیر والد والدہ کے اونٹنی اچانک پہاڑ سے برآمد ہو جانا، اسی طرح عصا کا سانپ بن جانا، یعنی ان کی توجیحات سائنسی طور پہ بھی دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا ایک سیکنڈ ٹھہریے شاہ بھائی، اگر فرض کیجئے کہ سائنس کسی زمانے میں اس جگہ پہ پہنچ جائے کہ بن باپ کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، فرض کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، تو کیا وہ معجزہ پھر معجزہ نہیں رہے گا؟ بنیادی طور پہ وہ معجزہ تو معجزہ رہے گا۔ اس زمانے کے اندر وہ معجزہ تھا، تب تک سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی۔ بنیادی طور پر سائنس بھی تو اللہ رب العزت کی تخلیق کے عناصر کو ڈھونڈنے اور جانچنے اور پرکھنے کا نام ہے۔ یہ بھی عجیب مغالطہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سائنس اور اسلام میں تصادم ہے۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس اللہ رب العزت کی تخلیقات کے عناصر کو ڈھونڈنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقات کے اندر چیزیں بنائی ہیں ان کو مسخر کرنے کا نام ہے۔ ایک دو باتیں بلال بھائی میں معجزے کے بارے ویسے بات تو آپ نے ختم کر دی خدا کی قسم یہ کہہ کے کہ سائنس بھی ہے، کیا کمال جملہ کہا ہے یار آپ نے، واہ 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 واہ، شام زندہ رہو یار، سلامت رہو، بہت اچھا جملہ۔ بلال بھائی، معجزے کی دو قسمیں بنیادی طور پہ ہوتی ہیں، ویسے تو علماء بیٹھے ہیں زیادہ قسمیں، لیکن بنیادی طور پہ دو قسمیں۔ ایک معجزہ بھی، یہ بات سمجھنے کی آج بڑی ضرورت ہے کہ معجزہ بھی اختیاری ہوتا ہے کئی مرتبہ، اور کئی مرتبہ اختیاری نہیں ہوتا۔ یعنی نبی جو رسول اور پیغمبر ہے، کئی مرتبہ معجزہ اس کے اختیار میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ کو کہا کہ آپ ایسے ہاتھ سامنے کریں گے تو ہاتھ کے اوپر روشنی ہوگی، یہ تو اختیاری معجزہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کو کہہ دیا کہ آپ دم کریں گے تو مادرزاد اندھے بھی صحیح ہو جائیں گے، کوڑی بھی ٹھیک ہو جائے گا وغیرہ۔ یہ ہمیشہ کے لیے دائمی معجزہ عطا کر دیا۔ لیکن بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں جو ان کے اختیار میں نبیوں کے بھی نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت موسیٰ ہی کے معجزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری جو تفصیل بیان کی ہے کہ کبھی لاٹھی کو پھینکو، اللہ پہلے پوچھا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، میں یہ کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اس کو پھینکو۔ جب وہ پھینکا، حضرت موسیٰ نے نیت نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سانپ بنا دیا، اور پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کا جو معجزہ ہے بنیادی طور پہ تو پوری امت کو عطا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ ایک سیکنڈ یہاں پہ رکیے گا ذرا حشام بھائی، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا تو اختیار نہیں تھا کہ وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی، لیکن وہ جو سامنے لوگ تھے جادوگر، ان کے پاس تو اختیار تھا، انہوں نے تو سوچتے سمجھتے سانپ بنایا۔ جی، وہ تو لوگوں کی آنکھوں پہ، قرآن پاک نے کہا نا کہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر ایسا جادو کیا کہ لوگوں نے ان رسیوں کو سانپ سمجھنا شروع کیا، لیکن اس سانپ نے جب اصل میں وہ رسیاں کھا لی، ان کو سمجھ آ گئی یہ تو ہماری تو شوبدہ بازی تھی، یہ تو حقیقت میں اژدہا بن گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قرآن کا معجزہ ملا نا بلال بھائی، بنیادی طور پہ تو اللہ کا کلام ہے نا، تو رسول اللہ کا اختیار نہیں تھا، یعنی جب قرآن نازل ہونا تھا تب بھی ہونا تھا۔ یعنی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کو بھی بعض معجزے اختیاری ملتے ہیں، ان کا اختیار میں ہوتا ہے، اور بعض معجزے اختیاری نہیں ہوتے۔ نبی اور پیغمبر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں عجیب کیفیت یہ ہے کہ جو کرامت ہے، جو مخلوق کے نبی وغیرہ نبی کے سے کوئی ایسی بات ہو جائے نا بلال بھائی، اس کو معجزہ، اس کو کرامت کہتے ہیں، لیکن ہمارا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کرامت ولی کے اختیار میں ہے، جبکہ معجزے کی دو قسمیں ہیں کہ معجزہ بھی بعض اوقات انبیاء کے اختیار میں ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا۔ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کوئی ولی اگر کسی سے کوئی چیز ایسی نمودار ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تو نبی کی کمیونیکیشن ہوتی ہے نا، وہی ہوتی ہے، تو کیا ولی کی بھی ہوتی ہے؟ ولی کی بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ ائمہ کو یہ کہیں گے کہ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی؟ مجھے اللہ کے میں ساتھ تو آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، کہ رب تعالیٰ طاقت دیتا ہے۔ دیکھیں، اڑ کر دکھایا تھا انڈیا کے اندر ایک نے، اور خواجہ اجمیری نے اس کو سمجھا دیا تھا۔ جو لوگ
उड़ना जानते हैं। लेकिन वो ख्वाजा का वो पानी तालाब का ख़त्म करना भी तो गैर शरीयत था। गुजारिश ये है कि इसके अंदर हिकमतें होती हैं। ये वली जानता है कि उसने किस हिकमत के तहत ये काम किया है। मैं इसमें सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि परवरदिगार की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब कोई शख्स ये क्लेम करता है कि मैं खुदाई नुमाइंदा हूँ, मैं उसका वली हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ, और वो कोई अमल एसोसिएट करता है अपने दावे के साथ, तो परवरदिगार की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर वो सच्चा नहीं है तो उस अमल को वो रोक दे, वरना जितने लोग उस अमल को देख के गुमराह होंगे उसकी जिम्मेदारी भी खुदा पे चली जाएगी। हशाम भाई, अल्लाह के नजदीक मुअजिज़ात का ज़ुहूर क्यों जरूरी है? वो नबी तो अपनी नबूवत को अपने किरदार से साबित कर चुका होता है। अच्छा बिलाल भाई, मैं जरा थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, मैं इंशाल्लाह इसका भी जवाब देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं बिल्कुल खामोश रहा हूँ तो मेरी भी बात जी हम भी खामोशी से सुनेंगे आपको इंशाल्लाह। नहीं, इख्तिलाफ इसलिए करना चाहता हूँ कि पहली बात शायद लगारी साहब ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो कम्युनिकेशन का सिलसिला ना, वो अल्लाह का नबियों के अलावा कोई सिलसिला नहीं है, ना इंसान के साथ हो सकती है ना इंसान के ऊपर वही आ सकती है। और दूसरी बात, 40वां हिस्सा वाली बात नहीं है। कौन सी? वो जो ख्वाब का हिस्सा है। नहीं, ख्वाब तो जारी रहेगा ना। ये रसूलुल्लाह ने कह दिया कि एक ही चीज जारी रहनी है, ख्वाबों के जरिए बुशारत मिलनी है, लेकिन जो पैगाम है ही ना, वही के जरिए होनी है ना, वही के जरिए जो कम्युनिकेशन है ना, वो नहीं रहनी। हाँ, ख्वाब क्योंकि एक मुस्तस्ना हो जाती है ना, एक जनरल कुलिया उसमें से बात किन्हें इस्तेनाई है, ख्वाब आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। दूसरी बात ये है कि बिलाल भाई, ये बात आज हम अगर समझ लेना, इससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ कि जो वली होता है ना, वो नबी नहीं होता, उसको वलायत क्लेम करने की जरूरत नहीं होती। ये बुनियादी तौर पे नबी और वली में फर्क होता है कि वली की वलायत के ऊपर ईमान लाना हर उम्मती के लिए जरूरी नहीं है, जबकि नबी की नबूवत के ऊपर ईमान लाना जरूरी होता है, इसलिए नबी नबूवत का दावा करता है। अगर कोई बंदा वलायत का दावा करे ना, वो कभी वली नहीं हो सकता। ये तो असूल शरई है, उसको क्या जरूरत है वलायत का दावा करने की? मार्केटिंग जो की बंदा जरूरत होती है ना, बोल रहा है व्हाट्सएप पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। यही जो इन्होंने बात की, इस्तिदराज और वलायत में क्या फर्क हुआ फिर? इस्तिदराज कहते हैं ऐसी कुव्वतों को, जैसे इन्होंने मिसाल दी कि कोई ऐसी आदत जो मुस्तकिल हो तो वो वलायत है, वो तो इस्तिदराज और कहानत और जादू है। ठीक, ये उम्मत का इस बात के ऊपर इजमा है। कोई बंदा दावा करे मैं हवा में उठता हूँ, मैं आग के ऊपर चलता हूँ, वो जादूगर तो हो सकता है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। तो ये जो क्लेम है ना, वलायत का क्लेम करना, ये तो बजाते खुद शरअ में गैर मतलूब है। वली को तो लोग पहचान जाते हैं ये अल्लाह का वली है, उसकी आदतों को देख के, उसके अतबार को देख के वली को खुद कभी क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। आप ये जितने भी सिलसिला है औलिया है, आप इनकी देख लें, इन्होंने वलायत क्लेम किया, लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं, लोगों ने इनके अंदर ये सिफात देखी है। अगर हम वलायत का क्लेम मानेंगे ना, तो फिर बताएं दज्जाल को उम्मत से कैसे बचाया जाएगा? दज्जाल के पास पूरी इस्तिदराजी कुव्वतें होंगी बिलाल भाई। वो बारिश को, वो आसमान को हुक्म देगा, वो मुर्दा को जिंदा करेगा, फिर उसको मुर्दा करेगा, फिर जिंदा करेगा। बताएं मौजूद और इस्तिदराज में फर्क तो करना है ना। यही मौजूदा जब नबी ईसा के साथ था, वो मुर्दे को जिंदा करते थे, तो मौजूदा है। और अगर दज्जाल करेगा तो इस्तिदराज है, क्योंकि वो एक्चुअल मुर्दे को जिंदा नहीं कर रहा। वो जब मुर्दा जिंदा हो रहा है, वो शैतान और जिन उस मुर्दे की शक्ल, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है, मैं इसका जुमला क्योंकि मैंने पढ़ा है मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं। तो सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे भाई को जब वो मारेगा और फिर जिंदा करेगा तो क्या वो मेरा भाई होगा? आपने फरमाया था उस जैसा। बिल्कुल, ये सही हदीस आपने बयान कर दी। इसका मतलब यह है कि इस्तिदराजी कुव्वतें बिल्कुल डिफरेंट है। वो शरियातीन और जिन्नात उसका भाई की शक्ल इख्तियार करेंगे, लोग ये समझेंगे, यानी इसको कहते हैं शोभताबाजी। और मैं ये दाद देता हूँ बिलाल भाई, एक बात कहने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। ये जो बाहर का मुआशरा जिसको हम बुरा भला कहते हैं, यकीन माने, उनमें जितने एलिजिनिस्ट है ना, जितने शोभताबाद हैं, उन्होंने कभी अपने आप को वलीउल्लाह क्लेम नहीं किया। मेरे भाई ने उन्होंने कभी अपने आप को वली करार नहीं दिया। हशाम भाई, क्या आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि कोई भी नबी या पैगंबर जो है वो अपने इस अल्लाह की दी हुई नेमत को आगे किसी को वक्ती तौर पे या परमानेंटली ट्रांसफर कर सकता है? बिलाल भाई, मैं इसकी बड़ी आम फहम आपको मिसाल देता हूँ कि कितनी तादाद है मुसलमानों की, अरबों खरबों है जी। कुरान पाक तो इजमाए उम्मत है ना, मौजूदा। क्या मौजूदा उम्मत को मिला है कि नहीं? मिला, हर एक को मिल गया। हाँ।
तो इसका मतलब है मौजूदा तो आज हमारे हाथ में कुरान पाक जो कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह एक मौजूदा कुरान पाक अपनी हक्कानियत के क्या बात है यार, अच्छी बात कर दी ना, ये कमाल है ना हमारे उलमा इकराम। मिसाल है। दूसरी बात क्या बात है यार, बातें जरूर कहना चाहता हूँ यार मजा तो लेने दो ना बात का यार, खुदा के वास्ते शाम, कमाल है यार, मौइज़ा तो हाथों में मौजूद है। वाह 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 यार वाह, वो लफ्ज़ जो अलिफ और लाम और मीम में पढ़ता हूँ वही मेरे नबी ने पढ़े। वाह वाह वाह। कुल्ली में भी होता, अगर दुनिया में कोई कलाम ऐसा हो जिससे मुर्दे कलाम करना शुरू हो जाए, पहाड़ चल पड़े, जमीन पट जाए, वो यही कलामुल्लाह है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला तो सिर्फ कुन कहता है तो तख्लीक हो जाती है। अल्लाह ने ये हजारों कलिमात अता करी है, तो मैं और आप गाफिल हैं। बुनियादी तौर पर बिलाल भाई बात ये है कि इन्होंने अभी जो बात की है ना कि स्पीड ऑफ लाइट की, तो मैं दो बातें इसमें जरूर ऐड करना चाहता हूँ। एक तो ये सही हदीस है कि जैसे इन्होंने कहा कि दुआ आसमान से उठे, तो ये तो नबी करीम ने फरमाया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर जो बंदा कहता है, तो ये कलिमात इतनी तेजी से आसमान क्रॉस करते हैं कि ये जो जितना लाइट ईयर्स के सफर हैं, चंद लम्हों में अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात ये बिलाल भाई ये समझने की जरूरत है, ये जो वक्त होता है ना, ये तो सूरज चांद सितारे का नाम है। जब इंसान चांद सितारों से मावरा हो गया तो वक्त की तो अहमियत खत्म हो गई। ये वक्त तो अल्लाह ताला ने मखलूकात के लिए बनाया हुआ है, ये तो मेरे और आपके लिए है। अल्लाह ताला तो खुद भी बजाते खुद वक्त से मावरा, वक्त भी अल्लाह की मखलूक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इससे मावरा ले गए तो वक्त का तो ये इतनी लंबी चौड़ी कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। बहुत अच्छी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बिलाल भाई कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाद मौजूदात है ना, मैं उनमें से चंद एक जरूर बयान करना चाहता हूँ। हजरत मूसा को असा का मौजूदा मिला, अल्लाह ने कहा लाठी मारो पत्थर पे, यानी मारो तो फिर पत्थर से पानी फूटेगा और 12 चश्मे रवा होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि पत्थर के ऊपर लाठी मारो, नबी करीम को कहा पानी के प्याले में हाथ रख दो, 5 उंगलियों से चश्मे रवा हो जाएंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाद मौजूदात हैं वो इतने मुहय्यरुल अकूल हैं कि हज़रत ईसा ने अल्लाह ताला के हुक्म से मुर्दा जिंदा किया है, लेकिन उस मुर्दे को जिंदा किया जो पहले कभी कलाम किया करता था, उसी ने कलाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर रहे हैं, वो लकड़ी बोल उठी है जिसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जिसने कभी आहें भर रही है और आज भी वहां पे मदीना के अंदर वो उस कॉलम के अंदर दफन है, मौजूद है। और रसूलुल्लाह ने उसको अपने सीने से लगाया। नबी करीम ने खुद फरमाया मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मुझे सलाम किया करता था, मैं उस पत्थर को जानता हूँ आज भी जो मुझे सलाम किया करता था, जिसमें मुझे बताएं कि बाकी नबियों के अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चांद को 2 टुकड़े किया, क्या लाठी थी हाथ में या चांद की सतह के ऊपर मारा है? नबी करीम ने तो सिर्फ इशारा किया है, तो चांद 2 टुकड़े हो गया। हज़रत मूसा ने लाठी मारी थी तो समुंदर 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजूदात मिले, उन तमाम मौजूदात में से सबसे बड़ा मौजूदा ये कलामुल्लाह मेरे और आपके और उम्मत के पास मौजूद है। और जो आपने वली की एक निशानी पूछी है ना, दुआ का कबूल होना, ये यकीनन वलायत की निशानी है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी कहा। लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि बुरे बंदे की दुआ नहीं कबूल होती, बुरों की भी होती है। कुरान पाक में शैतान इब्लीस की दुआ की कबूलियत का जिक्र मौजूद है कि जब अल्लाह ताला को उसने नाफरमानी की, उसने अल्लाह ताला को कहा अल्लाह क़यामत तक की मोहलत दे दे, अल्लाह ने उसकी भी दुआ कबूल कर। तो इसका मतलब ये है कि अगरचे निशानी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रब बुरे लोगों की बात को सुनता ही नहीं या कबूल नहीं करता। सारों का रब बड़ी अच्छी बात कर रही है। आज आपने दिल जो है ना वो जीत लिए, क्या खूबसूरत बात है।